Hey guys, how are you all? Let's start our new lecture, which is GOC's first lecture, acid and base. Okay, let me tell you about what is going to be covered in this session. I'm going to tell you about how to find some acid is more stronger or more weaker than any other acid. Similarly for the base, how we can find out which one is a very weak acid or which one is a very strong acid. Okay, so let's start from this concept. So here you can read a compound is classified as an acid or a base based on certain properties. Okay, at the present there are several theories which define the concept of acidity and basicity. Some important concepts are detailed below. Number one, Arrhenius concept of acid bases. Okay, first we need to understand about this theory. Okay, Arrhenius concept of acid and bases आप अगर आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स, ओके, तो उन सब में भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट मिलता है. ठीक है, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है इसके बारे में हम देखते हैं. सो द आर्हेनियस डिफिनेशन of acid says that they are compounds that give off H plus ions in the water, okay, and that bases are compounds that give off OH minus in water. So पहला स्टेटमेंट यही है that they are compounds that give off H plus ions. Okay, so acids are those compounds which give off H plus ions in water. Okay, now that bases, okay, bases are compounds that give off OH minus in water. Okay, so thus according to this theory only protic acids are allowed and hydroxide bases are allowed to be classified as an acid or base. Okay, thus according to this theory only protic acids are allowed and only hydroxide bases are allowed to be classified as an एसिड और बेस. तो जो आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट लिया था वो केवल यहाँ पर प्रोटिक एसिड के लिए बोला था और हाइड्रोक्साइड बेसिस के लिए ही बोला था कि ये एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, और उनका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था. राइट, सो यहाँ पर प्रोटिक एसिड्स जो हमारे पास होंगे, लेट H2SO4 एक्वस. ठीक है, तो H2SO4 जो है दैट इज एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, तो ये एक प्रोटॉन देगा, H प्लस देगा. ओके, ऑब्वियस सी बात है कि H2SO4 है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो रिच है, तो H प्लस आराम से इसको छोड़ सकता है. तो HSO4 माइनस एक्वस हमारे पास इसके साथ कंपाउंड मिलेगा H प्लस के साथ. सो बेसिकली दिस इज अ प्रोटिक एसिड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दे आर only protic acids and hydroxide bases are allowed. Okay, right, so basically according to Bronsted-Lowry definition, so the Bronsted-Lowry definition of acids is that acids are compounds that give off H plus ions when they react with another compound. Okay, likewise this definition says that bases are compounds that accept H plus ions from the other compounds. Furthermore, it also brings a new concept of conjugate acids and conjugate bases, since the acid after donating its proton is technically a base according to this definition. Got it? And is referred to as a conjugate acid. So this is important point, you have to remember this. बेसिकली मान लो कि आपके पास कोई एसिड है, एसिड क्या करेगा, H प्लस डोनेट कर देगा. ठीक है, तो H प्लस ये अगर दे रहा है, निकाल दे रहा है, तो इसके साथ कोई कंपाउंड तुम्हें कंपाउंड सेकेंड मिलेगा. तो कंपाउंड फर्स्ट एसिड से जो कंपाउंड सेकेंड आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस मिला, कंपाउंड सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड. ओके, दिस इज द Bronsted-Lowry थ्योरी. सो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस मिलता है किसी एसिड का. सो एवरी एसिड हैज़ इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, मतलब कि बेस अगर है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी होगा. ओके, आल्सो द स्ट्रॉन्गर इज एन एसिड द वीकर इज कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा. फ्रेंड्स, यू हैव टू highlight this line. Okay, so this is very important point, that
the stronger is an acid, the weaker is its conjugate base and vice versa. अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू donate H plus to any other compound, okay, and after that we will get what, we will get conjugate base. तो conjugate base will be weaker, okay, this is very important point कि अगर एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है सो ऑब्वियसली उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वीक. ओके, so now you can see the example is acid is H2SO4 and H2O is base. Okay, now SO4 is going to donate H plus to H2O and this H2O is base and it is going to receive that H plus. Okay, so basically you can see H2SO4 is going to be SO4 minus. This is conjugate base of H2SO4, right? So यहाँ पर हमारे पास जो एसिड का कॉन्जुगेट बेस मिला है आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस आयन टू द H2O, सो वो मिला है HSO4 माइनस. तो HSO4 माइनस इज अ वीकर बेस क्योंकि H2SO4 है स्ट्रॉन्गर एसिड. वैसे ही यहाँ पर H2O क्या करेगा, H प्लस रिसीव करेगा, देन इट विल बी व्हाट, H3O प्लस, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इस H2O का. समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि अगर H प्लस ये रिसीव कर रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा H3O प्लस के लिए. मान लो आपको चेक करना है कि कोई एक आपके पास एसिड 1 है और एसिड 2 है, तो अब बताओ कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक किस कॉन्जुगेट बेस के थ्रू आया है, किस कॉन्जुगेट बेस के थ्रू यहाँ पर ये मिला है. अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रॉन्गर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिड इज गोइंग टू बी वीकर. ओके, कॉन्जुगेट बेस अगर वीकर हुआ तो एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर. तो बेस के बेसिस पर भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं. गॉट इट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Bronsted-Lowry definition, or you can say Bronsted-Lowry theory. Now next is Lewis concept of acid and bases. So acids are electron pair acceptors while bases are electron pair donor. तो Lewis ने कहा कि acids are electron pair acceptors. एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं. while bases are electron pair donors. bases क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसी अदर कंपाउंड को. दस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक VF3. तो VF3 में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. ओके, आर लेविस एसिड्स वाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज सच एज टर्शियरी अमीन्स आर लेविस बेसेस. ओके, तो जैसे मान लो BF3 है आपके पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि VF3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वेरी वेरी लेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पर है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब यहाँ पर ये बिहेव करेगा एज अ पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर. ओके, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लाइक टर्शियरी अमीन. टर्शियरी अमीन देखो, ये है टर्शियरी अमीन. टर्शियरी अमीन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हमारे पास CH3 होल थ्राइस N है, ठीक है, तो इसमें ये एबल है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर दे किसी अदर कंपाउंड को. तो यहाँ पर जो VF3 है, VF3 इज़ अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. तो ऑब्वियसली ये इसको डोनेट करेगा और ये रिसीव करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव कर रहा है, सो इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा बेस और एसिड से, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्ट. ओके, लेविस एसिड्स में कंपाउंड कंबाइन विथ लेविस बेसेस टू जनरेट अ सॉल्ट. ओके, सो यहाँ पर बन जाएगा CH3 होल थ्राइस N प्लस VF3 माइनस. सो अ लेविस बेस, अ लेविस एसिड will produce for you a salt. Okay, now you have some questions, you have to solve these problems, and after that we will go through another concept of this
acid base. So take your time for question first, and you can comment answer in the comment box. Right. So question first is which of the following hydrocarbon is most acidic? Question पूछ रहा है कि which of the following hydrocarbon is most acidic? Number 1, number 2, number 3, number 4. So 4 compounds are given. So you have to find out which one is the most acidic. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है ये हमें पता करना है. ओके, तो एरोमेटिसिटी है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स में, कुछ में नहीं है. तो उसके बेसिस पे आप देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत. अभी बताया कि कॉन्जुगेट जो बेस होगा, मतलब कि अगर ये एसिड है तो अगर कॉन्जुगेट बेस, ओके, कॉन्जुगेट बेस अगर वो वीकर है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस अगर वीकर है तो उसका एसिड क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड. ओके, सो मोस्ट एसिडिक ऐसे ही पता कर सकते हो अगर आपको बेस के बारे में पता है. लेट यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो नंबर 1 देख लो. सो नंबर 1 में अगर देखो, सो दिस इज अ मोस्ट एसिडिक. ओके, बिकॉज यू कैन सी इट्स conjugate base. You can say conjugate aromatic conjugate base will be most stable. If that conjugate base is most stable, so obviously that is not going to donate electron pair to another compound. Okay, तो अगर electron pair किसी और को donate नहीं करेगा, then obviously that is going to be very weaker base. Okay, so this is the strongest acid.